keep on telling you कि मुझे दो जगह जो है वो जाना ही जाना है और वहाँ जाकर देखना है कि वहाँ क्या है. So yes, I am going to one of the places today, and on that note I'm gonna give you 10 seconds to recall कि वो कौन सी दो जगह हैं जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ. And yes, I think you have got it correct. I wanted to go to Khurja. Khurja is world's biggest ceramic hub, and all sorts of things are made over there, whether it is tiles, cups, diffusers, and yes, the pots and the miniature toys. So मैंने सोचा कि क्यों ना विंटर ब्रेक का फ़ायदा उठाया जाए और एक बार खुर्जा देख के आया जाए. So yes, I'm gonna take you to a house video for a house video to Khurja today, and let's see what lies for us in Khurja. जब मैं खुर्जा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो विजुअलाइजेशन होता है कि वहाँ पर हर गली में, हर नुक्कड़ में बस सिरामिक ही सिरामिक होगा. हर अलग शॉप पे एक अलग तरीके का कुछ ना कुछ मटेरियल होगा. तो आज हम वहाँ चलते हैं और लेट्स सी कि खुर्जा में क्या क्या मिलता है. So I am Dr. Aditya Khandelwal and welcome to my channel Flora Friends. So जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पर तरह तरह के पता नहीं खुर्जा कैसा होगा, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें होंगी सिरामिक की, ऐसा कुछ. तो वहाँ वैसे से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर. So there are small and big shops and some factories which you can visit. So apparently the most famous ceramic shop over here is the Fancy Emporium. और Fancy Emporium के नाम पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की इनकी शॉप है. So we have come to, I think, their biggest and newest showroom. This is basically for all the crockery things, and I'm just loving it. The quality is also very nice, and the quantity and the prints that they have over here are quite nice. गमलों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, but let's get around and see what all is there over here. ये प्लेटर्स हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छे हैं. इनका कलर एंड the finish is quite good. This is 3 triple fired material, as I have got to know, and these are all the bowls, different kinds of bowls, mugs, plates, everything is available over here. So I am standing here with Osama, and Osama is the owner of Fancy Emporium. So let's get to know something about the history of Fancy Emporium, and yes, tell us about Fancy. So my name is Osama Ahmad Khan. So like 2 years back I joined my father's business. So Fancy Emporium is like 35 years old. It was started by my father. It was a very small shop. Okay. It was his first emporium in Khurja. Okay. And this has been developed like a year back. The name is the Ceramic Studio. It's very beautiful. So you have, I think, किसको सारा crockery ही है यहाँ Yeah, पर. it's basically tableware, Okay. which is just all studio pottery, triple fired. We mostly cater online resellers, Okay. cafes, restaurants, mainly major restaurants in Delhi, Gurgaon, Noida, all. Do you take help of anybody in designing all these things and? Basically, it's this
is the main inspiration from Google and places like that. So it's very beautiful. I really had an amazing time coming here. So this is one of the places. And how many stores do you have in Khurja? We have 2 stores in our name, which is Fancy Emporium and Ceramic Studio. All over there should be around 50 to 60 stores. All over Khurja? All over. Oh, that is Big, nice. small, included. Right. Okay, so it was nice meeting you, Sama. Thank you for giving your time to us. So it's been a while and I am going through all the stores. काफ़ी सारे बड़े stores हैं, छोटे stores हैं. So this particularly I really like the store because इसका काफ़ी textured और colourful काम है. So let's just go through the store. देखिए how beautiful the stuff is. So we are here at Awesome Art और Awesome Art में काफ़ी awesome सामान है. It's very colourful, textured और हर तरीके की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है. गंडा सेट्स भी हैं और जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अच्छी है. टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं. तो ही इज़ द ओनर. आपका क्या नाम है? मोहसिन जी हैं और ये हमें दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके के पॉट्स. तो ये कुछ नया इन्होंने बनाया है. डिज़ाइन है ये. दिस इज़ डमरू डिज़ाइन एंड यस इट लुक्स क्वाइट नाइस. डिजाइनर फ्लो में भी है, ऑर्डिनरी फ्लो में. got a very warm welcome by Mr. Faizan और DNF के ओनर हैं ये and he keeps on innovating the stuff. That is what I like the most about their brand. So welcome Faizan. अब आप हमें बताएं थोड़ा सा DNF की हिस्ट्री के बारे में and what all do you do या आपके क्या विजन है, क्या सपना है आपका DNF के लिए, वो सब बताएं. एक्चुअली हमारा जो ये कंपनी है बहुत पुराना है. पहले नेशनल पॉटरी के नाम से था. अच्छा. जो मेरे फोर्थ फादर से ये फॉर्म हमारी चल रही है. हम पहले जब यहाँ पर काम इतना एडवांस नहीं था, जो कास्टिंग भी होती थी प्रोडक्ट्स की, तो आदमी पहले उसका एक एक स्ट्रक्चर बनाता. अब मोल्ड्स हो गए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है. भट्टी पहले कोयले से चलती थी, अब आज के टाइम में गैस से चल रही है. बहुत सब कुछ प्रोसेस बहुत बदल गया है. लेकिन हमारा जो काम है वो हमारे पास हिस्ट्री भी है हमारे काम की, कि हमारे फोर्थ फादर्स को कितने मेडल्स मिले हैं. अच्छा. इस काम के लिए. हाँ, उन्होंने काफ़ी एग्जीबिशंस भी करी हैं जिनमें उनको मेडल्स वगैरह सब मिले. तो आज के दौर में जो हमारा ये है एम कि हमें प्रोडक्ट्स मार्केट में ड्यूरेबल देना है और प्रोडक्ट खूबसूरत भी लगे. बिल्कुल. हाँ. क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम पॉट्स एंड प्लांटर्स में ये सबसे बड़ी बात है कि प्लांट जब तक प्लांट है जब तक लाइफ है. अब प्लांट घर में क्यों लगाया आदमी? प्लांट घर में आदमी यूँ लगाए कि उसको एक तो डेकोर में भी हमें उसको ले जाना है. हाँ. तो हमने एनिमल शेप के प्रोडक्ट्स बनाए. हाँ. ताकि आदमी प्रोडक्ट्स प्लांट लगाए और वो खूबसूरत भी दिखाई दे. बिल्कुल. बाहर की एयर तो पॉल्यूटेड है ही, तो हमें इंडोर एयर को किस तरह प्यूरिफाई करते हैं और जो इंडोर का जो एयर है वो सबके लिए रहने लायक बनता है. ये हमारा एम है. इसी के साथ हमारी रोजी भी जुड़ी हुई, तो हम इसको और खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं. तो जो DNF सिरेमिक्स का सबसे ज़्यादा यूनिक पार्ट है, नॉट ओनली दैट यू मेक सिरेमिक बट आप रेजिन भी बनाते हैं. और मैंने भी आपसे बहुत सारे पॉट्स पहले मंगाए थे, तो वो बहुत ही अच्छे हैं. डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है. तो आप विद द न्यू जनरेशन, फोर फादर से चला आ रहा है, लेकिन आप जब न्यू जनरेशन आई इसके अंदर, तो आपने क्या चेंजेस में लेके आए आप? एक्चुअली मैम हमने चेंजेस तो देखिए ज़्यादा हम नहीं लेकर आए, लेकिन हमने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया है. क्योंकि जो क्वालिटी उस टाइम पे बनती थी, आज के टाइम में उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है. बिल्कुल. हाँ. ना तो उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी थी. जी हाँ. ना वो उस टाइप की लेबर थी.
मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव भी मार्केट ज्यादा हो गया है और इंपोर्ट भी बहुत सामान होने लग गया, तो ऑफ कोर्स आपको अब हमें चाइना से भी मतलब वो करना पड़ रहा है, कंपटीशन है, एक तरीके कंपटीशन का है जी। तो इस टाइम जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 90% आप कह सकते हैं कि चाइना के टक्कर का प्रोडक्ट है। 100% तो नहीं है क्योंकि वहाँ की लेबर में यहाँ की लेबर में बहुत काफी फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फैजान फॉर हैविंग अस एंड इट वाज रियली नाइस। और आपकी फैक्ट्री अब हम दोबारा घूमेंगे। सो वी हैव लैंडेड इनटू द DNF सिरेमिक्स फैक्ट्री और यहाँ पर सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड द अदर प्लेस दैट वी सॉ वो थोड़ा सा डिस्प्ले था। सो वी आर ओवर हियर विद मिस्टर कादिर और कादिर जी जो है यहाँ पूरा मैन्युफैक्चरिंग इनका शुरू करा हुआ है और यहाँ पर करते हैं। आप हमें थोड़ा सा बताएं कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितना आप प्रोडक्शन करते हैं, आप क्या क्या बनाते हैं, आपका कितने सालों से काम चल रहा है? हमारा 100 साल 100 साल पुराना काम है। इट्स बिन अ सेंचुरी। So yes, the work definitely is the century old and it is visible quite clearly over here. चलिए तो हम फैक्ट्री देखते हैं। पहले जब आप गमले बनाते हैं तो सबसे पहले क्या क्या मिट्टी साथ में लेते हैं? चाइना के लिए लेते हैं, अहमदाबाद, बीकानेर, चाइना के लिए। बिल्कुल, तो ये चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं। हाँ, इनको मिला करके पानी में और खूब सारा मिक्स करते हैं आपस में। अच्छा, ग्राइंडिंग होती है वो करते हैं। फिर उसके बाद में आपने जो है फर्मे बना रखे हैं। फर्मे के अंदर कास्टिंग का प्रोसेस है। एक भैया और निकाल के दिखाइए ना हमें प्लीज़। तो ये कास्टिंग हो रही है इसके अंदर और फर्मे बने हुए हैं और यहाँ पर एलिफेंट वाले जो हैं मोल्ड्स तैयार हो रहे हैं। तो ये कास्टिंग से ये खुल गया। ये एलिफेंट का पॉट ऑलमोस्ट बस बाहर ही आने वाला है। That's a beautiful elephant. इसकी सूंड अपेरेंटली टूट गई है और अब क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया जाता है, ये जो पार्ट हम देख रहे हैं इसको ये काट दिया जाएगा बाद में फिनिशिंग के लिए, तो ये पूरा पॉट बन जाएगा। सबसे पहले फर्मे में गया, मिट्टी को अपन ने मिलाया, फिर फर्मे में गया। फर्मे से निकलने के बाद में उसको सुखाया गया। सुखाने के बाद में उसमें पानी माना जाता है फॉर द फिनिशिंग। अब फिनिशिंग के बाद में ये वाला जो है इसके बाद कहाँ जाएगा? इसके बाद होता है ग्लेजिंग का प्रोसेस। और ग्लेज में ये क्या चीज़ लगा रहे हैं आप? ग्लेज ओपेक ग्लेज होता है जो कि कैसे लगाया जाएगा? वाइट ओपेक ग्लेज है और ये पॉट आ गया और इसमें केवल इसको डिप करा जाएगा और ये डिप करते ही इसमें वाइट कलर आ गया, ग्लेज आ गया। अब ग्लेजिंग के बाद में अच्छा ग्लेजिंग के बाद में पॉट के ऊपर जो भी अगर आँख नाक कान कुछ भी बनाने हैं, तो जैसे हाथी का पॉट हम लोग देख रहे हैं तो एलिफेंट पॉट में दे आर मेकिंग विद हैंड, इट इज़ ऑल डन विद हैंड, सो दे आर मेकिंग आईज। पूरा का पूरा हैंडवर्क हो गया। दे हैव मेड दिस आईज बन गए, कान का हो गया और ट्रंक पे थोड़ा सा डिजाइनिंग हो गई। सो दिस इज डन आफ्टर ग्लेजिंग। सो आफ्टर द पेंटिंग एंड एवरीथिंग इट इज़ गोइंग फॉर फायरिंग। और ट्रिपल फायरिंग जो होती है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा काम में आता है। तो सिंगल फायरिंग डबल फायरिंग जो होती है वो ज़्यादा काम में, जनरल यूज़ के लिए वो काम में आती है। अब हम अंदर जाके देखेंगे भट्टी, लेकिन वहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, सो आई वोंट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग ओवर देयर। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी। ये पूरा बना हुआ है, इसके ऊपर ही गाड़ी लगाई गई, इसके अंदर पूरा माल जो है वो भर दिया गया है। ध्यान रखते हैं योगा पॉट है, योगा पॉट। हाँ, जो योगा पॉट्स हैं वो बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल, योगा पॉट्स सुपर। और अब इसको इधर लाएंगे और ये जो ट्रॉली है ये इधर आ जाएगी। इसके बाद में ये खिसक के एंड द प्रोडक्ट इज गोना टू शिफ्टेड इनसाइड। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पर 26 ऐसी जो गाड़ियाँ होती है, 26 कार्स
not gonna dare touch these. So I think this was amazing. बड़ा step wise process हमें देखने को मिला. And I hope you can see जब अंदर गया तो सामान तो कैसा था और बाहर जब आया है तो the whole thing has changed its whole form. These are some other materials which have been made by them. And these are the फरमास. हर तरीके के पॉट के फर्मे ही फर्मे हैं यहाँ पर. पॉट्स नहीं है, केवल फर्मे रखे हुए हैं सूखने के लिए. ये कुछ माल है जो कि फर्मे में से निकला है, तो निकलता है उसके बाद में इट इज़ लाइक दिस. फिर इसमें वही पानी लगेगा, ग्लेजिंग होगी, उसके बाद में वो फायरिंग पे जाएगा और तब जाकर के सामान जो होता है वो पूरा होता है. So this was all from my video of Khurja. I have spent the whole day in Khurja and it was so amazing. बड़ा मज़ा आया. From the manufacturing